السلام علیکم، ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہم حیدر۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ خبر شامل کر لیں گے لاہور سے ندیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق دل دو یا بل دو، جی ہاں یہ نام ہے اس ڈرامے کا جو شالیمار تھیٹر لاہور میں جمعہ 23 اگست سے سٹیج ہو رہا ہے۔ جی اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے شالیمار تھیٹر میں، جہاں پر ان کے نئے ڈرامے دل دو یا بل دو کی جو ہے وہ ریہرسل جاری ہے۔ یہ ڈرامہ جو ہے وہ بالکل حالات حاضرہ پر پیش کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اس ڈرامے کے رائٹر ڈائریکٹر نسیم وکی ہیں، تو ان کی مخصوص عادت ہے کہ وہ موجودہ حالات کے اوپر جو ہے وہ اپنے ڈرامے کو بیس کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ دل دو یا بل دو ہے۔ یہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے اس ڈرامے کو کیا جا رہا ہے، جو بلوں نے لوگوں کو بل بلانے پہ مجبور کر دیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے نسیم وکی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈرامہ بالکل جو ہے نا ملک کے حالات کی عکاسی کرے گا، اور ہم نے ایک بہت بڑے جو مسئلہ ہے اس کو بہت کامک سٹائل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پچھلے ڈرامے جس طرح کامیاب ہوئے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ بھی کامیاب ہوگا۔ جی اس ڈرامے میں جو مرکزی کردار ہیں وہ نسیم وکی، زارا خان اور خوبصورت کیف جو ہے وہ ادا کریں گے، اور ان کے ساتھ ناظری نور، نسرا نور، خواہش بٹ، آشا بٹ اور اسد مکھڑا، حامد رنگیلا، شجر عباس و دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے نسیم وکی نے، اور اس کے پروڈیوسر ملک طارق ہیں، اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ جمعہ 23 اگست سے شالیمار تھیٹر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کر لیں گے لاہور سے عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق پسند کی شادی بن گئی جان کا عذاب، بیوی کی رضامندگی کے باوجود ہوئی جیل کی یاترا۔ 19 سالہ سائمہ کو عثمان کے ساتھ پسند کی شادی کرنا بھاری پڑ گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور پریس کلب میں سائمہ کی طرف اپنے وکلا کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کھانیوال کی رہائشی ہے، اس نے اپنی پسند سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ عثمان سے شادی کر لی۔ پسند کی شادی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ عدالت میں دفعہ 64 اپنی رضامندی کے بیانات دینے کے باوجود سائمہ کے والدین نہ مانے اور سائمہ کے خاوند عثمان اور اس کے تمام گھر والوں کو تلمبہ تھانے میں درج لڑائی جھگڑے اور قاتلانہ حملے کے ایک جھوٹے مقدمے میں پکڑوا دیا۔ عثمان 2 ماہ سے جیل میں بند ہے۔ پسند کی شادی کرنا دونوں میاں بیوی کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ سائمہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے انصاف کی اپیل ہے۔ سائمہ کا موقف تھا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ میرا اس وقت کوئی آسرا نہیں ہے۔ اللہ پاک اور حکومت کے سوا مجھے انصاف دیا جائے اور میرے شوہر کو جھوٹے مقدمات سے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر امجد اقبال مکسی دیگر عہدیداران کے ہمراہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی ممکنہ تعیناتی پر تحفظات کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس کی گئی۔ حکومت سے گزارش ہے کہ یونیورسٹیوں کے فنڈز کی منصفانہ تقسیم کی جائے۔ حکومت یونیورسٹیز کے بچوں پر توجہ نہیں دے رہی، بغیر بجٹ یونیورسٹی اپنے فرائض کیسے سر انجام دے گی؟ صوبوں کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے۔ سوائے صوبہ سندھ کے کوئی بھی صوبہ یونیورسٹیوں کے لیے بہتر کام نہیں کر رہا۔ انڈر گریجویٹ پالیسی پر عمل درآمد کو روکا جائے، اس پر ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ مطالعہ پاکستان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے طلباء کے لیے نقصان دہ ہے۔ پنجاب حکومت سندھ حکومت کی کئی یونیورسٹیوں کے مسائل حل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف میرٹ کے نعرے پر عمل ہونا چاہیے۔ اس سے درخواست ہے کہ وائس چانسلر کی تعیناتی میں میرٹ نظر آنا چاہیے، کسی پسند یا ناپسند نہیں ہونی چاہیے۔ خبر شامل کر لیں گے منڈی بہاودین سے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق
मलिकवाल मरकजी मिलाद कमेटी का अहम इजलास इशा की नमाज के बाद शमस अल आरिफीन यूनिट मोहल्ला राजगान जामिया मस्जिद आशिकाने मदीना में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत मरकजी मिलाद कमेटी की सदर मुदस्सिर हैदर भट्ट साहब ने की। इजलास में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस व दीगर प्रोग्रामों के मुतल्लिक मुशावरत की गई और जश्न मिलाद को शायान और शान तरीके से मनाने पर जोर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक माह रबी अव्वल की आमद है। मलिकवाल में मरकजी मिलाद कमेटी के इजलासों का सिलसिला जारी है। इस हवाले गुज़िश्ता शब शमस अल आरिफीन यूनिट मोहल्ला राजगान का अहम इजलास जामिया मस्जिद आशिकाने मदीना में मुनक्किद हुआ। खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला के सेक्रेटरी इत्तलाआत सगीर भट्ट की क़यादत में एक वफ्द ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। गुजरांवाला की सियासी व समाजी शख्सियात ज़हीर भट्ट और राना तुफैल भी उनके हमरा थे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन की अबतर सूरत-ए-हाल, सूबाई हुकूमत की जानिब से बदतरीन करप्शन, तालीम और सेहत के हवाले से नाकस कारकर्दगी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा गंदारा तहजीब का मरकज है। इस सूबे में सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चलो चलो सूबाई सदर के पास चलो। 4 बजे निश्तराबाद चौक से वफ्द सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के लिए जाएगा। जलसा किसने कैंसिल करवाया? जलसा क्यों कैंसिल हुआ? इमरान खान कब रिहा होगा? इमरान खान कैसे रिहा होगा? अली अमीन अगर वज़ीर आला हाउस में नहीं मिल सकते तो हमारे पास नश्तराबाद चौक आए, अब बात सरे बाजार होगी। इंतहाई मायूस किया है मेरी लीडरशिप ने। मुझे बड़ी मायूसी हुई आपके इस अमल से कि आपने आज इमरान खान का इस्लामाबाद का जलसा तरनोल वाला कैंसिल किया है, जबकि हमें आपने ख्वार कराया। हमें आपने 21 तारीख को बुला लिया और 22 तारीख तक आप लोग वहाँ पे सोए हुए हैं। बड़ी शर्म और बड़े अफसोस के मकाम है। मैं पूछता हूँ आज़म स्वाति साहब से, आज़म स्वाति साहब आपके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग आ गया कि आप सुबह 7:30 बजे जाके इमरान खान से अडियाला जेल में मिल रहे हैं? मुझे 1 साल हो गए हैं, अदालतों के ऑर्डरों के बावजूद भी जो है मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा। जो असली वर्कर हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा। लोगों को, हमारे वकीलों को 3-3 लोगों को मिलने देते हैं, बाकियों को मिलने नहीं देते। आपको किसने भेजा भाई 7:30 बजे? ये तो बताएं कौन सा जादू का चिराग है आपके पास कि बाकी इमरान के चाहने वाले भी उससे जाके मिले। और ये जलसा आपने इमरान के नाम पे मंसूख कराकर, मैं बखुदा आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, ये इमरान खान मेरे हिसाब से वक्त का वली है और उसने कहा था कि पीछे कोई रह तो नहीं गया, रियासत मदीना बनेगी और आप लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उमर अयूब साहब आपको सफाई पेश करनी है, गौहर अयूब साहब, गौहर आपको सफाई पेश करनी है। शिबली फराज साहब कितने हो? आप तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। खबर शामिल करेंगे सवात से। हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवात फजा गढ़ के एक निजी होटल में CGPA ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनाकाद किया गया, जिसमें सवात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राहत अली, नाइब सदर जाकिर मोहम्मद, साबिक नाइब सदर अली शेर मियां, मालाकंड चैम्बर, बजोड़ चैम्बर, लोअर दीर चैम्बर ऑफ वुमेन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लोअर दीर के अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर CGPA ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम ऑफिसर शहजादी रुबाब ज़ेब ने कहा कि इस वर्कशॉप का इनाकाद का मकसद बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से आगाही हासिल करना है और फिर इन मसाइलों मुश्किलात सद्भाव के लिए किरदार अदा करना है। खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर व साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने सफदर खान बागी को खैबर पख्तूनख्वा के लिए पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। पार्टी के सीनियर नायब सदर व सालिक हुसैन ने इस ज़मन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो इस नई जिम्मेदारी के साथ सफदर खान बागी माजी की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देंगे। सफदर खान बागी इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी इत्तलाआत के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। खबर शामिल कर लेंगे टोबा टेक्सिंग से। मियां जहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा पीर आबिद हुसैन कादरी जहांगीरी दरबार आलिया जहांगीरिया गोजर खान को मरकजी सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मखदूमा कायनात पाकिस्तान जिला रावलपिंडी और कारी मोहम्मद अकरम रुबानी को मरकजी सदर टोबा टेक सिंह मुकर्रर करके दलील हुसैन शाह बुखारी नशीन दीना LLB एडवोकेट चेयरमैन तहरीक ख़त्म नबूवत
मखदूमा कायनात पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामी, समाजी और फलाही हलकों ने इनकी तकर्री का खैर मुकद्दम करते हुए मुबारकबाद पेश की है। खबर शामिल कर लेंगे मंचनाबाद से। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अजमल निसार पर कातिलाना हमले पर मंचनाबाद के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। 24 घंटे गुजरने के बावजूद जिला इंतजामिया की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। असातिज़ा ने प्ले कार्ड उठा एहतजाज किया और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मंचनाबाद के इलाका गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अजमल निसार पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अजमल निसार को गुज़िश्ता रोज उनके ऑफिस से वापसी पर गाड़ी से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस वाक़या के बाद जिला भर में तमाम स्कूलों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ताहाल मुल्जिमान की गिरफ्तारी ना हो सकी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। असातिज़ा ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए DPO बहावल नगर से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। खबर शामिल करेंगे मंडी बहावलदीन से। सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुस्तहकीन के लिए चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी खत्म कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स की रियायती नरखों पर अशिया की फरोख्त फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 अरब रुपए की सब्सिडी पर अमल दरामद रोक दिया गया है। हुकूमत ने सब्सिडी बंद करने का जुबानी हुक्म दिया। तहरीरी हुक्मात जल्द जारी किए जाएंगे। सब्सिडी रोकने का फैसला वफाकी काबीना का हालिया इजलास में किया गया। सब्सिडी बंद करने से 26 मिलियन मुस्तहिक खानदान मुतासिर होंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर चैम्बर में स्मोक की रोकथाम पर आगाही सेशन का इनाकाद। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्मोक की रोकथाम पर एक जामिया आगाही सेशन का इनाकाद किया, जिसमें लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, जनरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इमरान हमीद शेख, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां अंजम निसार और साबिक नायब सदर फहीमुल रहमान सहगल के अलावा मुख्तलिफ सनतों के नुमाइंदों, माहौलियाती माहिरीन और सरकारी हुकाम ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने कहा कि लाहौर चैम्बर स्मोक के खात्मे के हवाले से शऊर व आगाही पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हुकूमत व एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर इस मसले के पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के वक्त की वीडियो हाथापाई भी हुई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के वक्त की वीडियो हाथापाई भी हुई। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के वक्त की वीडियो हाथापाई भी हुई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के वक्त की वीडियो हाथापाई भी हुई। खबर शामिल करेंगे पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जलसा-ए-आज़म सवाती और गंडापुर के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने मुलतवी कराया है। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा जी? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती? इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। जी जी जरूर, थैंक यू। खबर शामिल करते हैं पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत ज्यादती हुई है, जलसा कैंसिल नहीं करना चाहिए था। मैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत के लिए जा रहा हूँ, उनको हम जेल भेजेंगे, ये कहना है शुएब शाहीन का। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब में CECP की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें इंटरनेट की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। तफसीलात के मुताबिक CEC पाशा कंपनी के ज़ेरे तमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया और हुकूमत से जल्द इंटरनेट की बहाली का मुतालबा किया गया। CEC पाशा कंपनी की तरफ से साकिब अजहर का कहना था कि पाकिस्तान यूथ में इंटरनेट की स्पीड खत्म होने से मायूसी फैल चुकी है, क्योंकि इंटरनेट अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फ्रीलांसर बिजनेस के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त 300 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। बिजनेस का नुकसान तो अपनी जगह,
कंपनियां मुआहदे कैंसिल कर चुकी हैं। तकरीबन 60% यूथ जो फ्री लांसर काम कर रहे थे बेकार हो चुके हैं। इस मौका पर कमल चीमा साहिबा ने कहा कि इस तरक्की के दौर में इंटरनेट होने और क्लाइंट एतमाद के खराब होने की वजह से हम तरक्की में आगे जाने की बजाय वापस हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से खादम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर में एप्का के 9 मुंतखब अहदेदार हत्ता के लाठियां तक खाती है। सर आज का ये प्रोग्राम के हवाले से आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का ये प्रोग्राम जो है ना IPH यूनिट जो है ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का जो ये तश्कील दिया गया है उसकी जो 9 मुंतखब अहदेदारान हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी की जो है ना पुरवकार जो तकरीब हो रही है उस हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। तो इसमें जो तमाम अहदेदार मुंतखब हुए हैं उनसे हलफ लिया है। चौधरी शफकत रसूल संधू साहब जो सदर एप्का पंजाब हैं उन्होंने और मुलाजमीन की खिदमत करने का उनको मौका दिया है अल्लाह ताला ने। तो मैं समझता हूँ कि एप्का का प्लेटफार्म मुलाजमीन के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म है जैसे कि एक सायादार दरख्त होता है। एप्का से पहले तो मुलाजमीन की आवाज़ कोई उठाता ही नहीं था। एप्का एक ऐसी तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया, उनके मसले मसाइल से बुलाया गया था और जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। लेकिन ये मोहतरमा और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस पीपल्स पार्टी और ये जो नून लीग का गठजोड़ है ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ आपको क्रश करना चाहते हैं। ये अरबों रुपयों के मालिक हैं। ये खाली सिर्फ और सिर्फ मैं दावे से कहता हूँ कि ये दोनों तीनों जो बड़े बड़े लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना सरमाया पाकिस्तान में ले आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान किसी का मोहताज ना होगा। 70 की दहाई से पहले अगर पाकिस्तान बहुत सारे मुल्कों को कर्जा देता था, अरब अमारात को 70 की दहाई से पहले कर्जा पाकिस्तान देता था, जापान को कर्जा पाकिस्तान ने दिया, चाइना को कर्जा पाकिस्तान ने दिया, लेकिन बदकिस्मती से 70 के बाद ये लोग मुसल्लत हुए और आज हम भिखारी बन गए। हम डोर टू डोर मांग रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सरकारी मुलाजमीन अपना हक लेकर रहेंगे। ये कोई किसी के बाप की विरासत नहीं है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन 1 से लेकर 22 जेल तक सबकी दावेदार है। जो अफसरों में जो अफसरान हमारे एयर कंडीशन में बैठते हैं हम उनकी भी दावेदारी करते हैं और उनकी भी जंग हम लड़ रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इल्तमास है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम मुलाजमीन पर तरस खाया जाए और जितने भी काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए, वरना इंशाअल्लाह अगले मंथ में हम इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीम साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हक का साथ दिया और हक का झंडा बुलंद किया, क्योंकि जितनी यहाँ पे मुश्किलात थी अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम भाइयों ने मिलकर अपने अहद को, अपने यूनिट को कामयाब किया। उस पर भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम भी सिर्फ इन अफसरान से और इन सियासतदानों से आपको शायद इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो हम उनको ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से आज पाकिस्तान क्लर्क और हमें इन फरोलों के आगे सबसे बड़ी बात की बोलने कि जिस अंदाज में आपने ये यूनिट हाफिज साहब और वकास अजीज साहब और बाकी दोस्तों ने कायम किया, एसोसिएशन अपने भाइयों के साथ है और जिस तरह मियां रियाज साहब ने ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन शायद इस मुल्क की वो वाहिद तंजीम है
बड़े थे, जो हमारे लीडर थे, उन्होंने जेलें भी काटी और FIR भी हुए। और यहाँ पर एक वक्त भी था कि जब हमारे ही एक मर्द कलंदर, जिसका नाम चौधरी मोहम्मद अफजल साहब था, एक्स वाइस सदर, कि जब सेक्रेटरी फनास ने उनसे ऊंची आवाज में बात की तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया कि तुम होते कौन हो क्लर्क को ये कहने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना हक लेना जानते हैं और लेके रहेंगे।